Very good morning, students. So today we will talk about the writing portion of our syllabus. For class 11th and 12th, it's almost the same, only certain topics are different. So before starting any topic of writing, I just want to let you know that what kind of writing pieces we have with us. Like writing portion में आपका क्या क्या topics होते हैं. So first of all, we need to understand we have two kinds of writings with us, like major writing discourse, okay, major writing discourse and minor writing discourse. ओके, सो मेजर राइटिंग डिस्कोर्स में हमारे लेंदी राइटिंग वर्क्स आते हैं, लाइक हमारी आर्टिकल है, स्पीच है, रिपोर्ट है, ठीक है, ऑल दीज थिंग्स आर अंडर मेजर राइटिंग डिस्कोर्स. ओके, देन माइनर राइटिंग डिस्कोर्स जो होते हैं, इसमें आते हैं हमारे एडवर्टीजमेंट, नोटिसेस, पोस्टर्स, इन्विटेशंस. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स. यानी कि जहाँ पे हमें लैंग्वेज का यूसेज ज़्यादा होता है and we need not to follow a particular, you can say, a layout. We need to show our creativity more, है ना. That is major writing discourse. Here also in minor writing discourse we need to show our creativity, but there are certain rules. कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें फॉलो करनी है, लाइक की फीचर्स आर द सेम, ठीक है ना. वट एवर यू आर क्रिएटिंग, बट की फीचर्स रिमेन्स द सेम. ओके, एंड वाई दीज थिंग्स आर इन्वॉल्व इन योर सिलेबस, जस्ट I am just giving you a brief. To judge and examine a person's creative mind along with the usage of language. Okay, English is a language subject. Although it's very much practical, I believe that, but it's a language subject. And like in your job, workplace, somewhere, whenever you go ahead in your life, so they will not ask you to read a chapter or write question answers over there. They will give you different kinds of tasks, to write an advertisement, to write an invitation, to write a report or something, anything, है ना. So this is for this thing, so that you would be able to write all these things in your future work. Okay, so to judge and examine a person's creative mind along with usage of language, these things are involved in your syllabus. I hope you understand this. A great morning, students. So today we are starting our writing portion. So the first topic which I pick for you is poster. So poster is a very common word, you have often heard it. Okay, so poster क्या होता है, आपने दीवारों पे देखे होंगे पोस्टर्स लगे होते हैं, किसी इवेंट्स के पोस्टर होते हैं, लाइक अ काइंड ऑफ फेयर्स लगते हैं, मेले लगते हैं, उनके पोस्टर्स लगते हैं, उनकी थीम के ऊपर होते हैं, उनके टाइम, प्लेस, all things are mentioned over there. Sometimes these are for environmental awareness. Okay, sometimes they are like stop smoking, no tobacco, tobacco kills, these kind of posters you have seen. Okay, these are very normal common posters. You have also seen posters of save water, save life, है ना, green India, clean India, like these. So all these are posters. So posters are, if you go with the definition, a large printed picture or a notice in a public place used to advertise और टू अवेयर पब्लिक. ओके, सो ये जो पोस्टर होते हैं, ये बहुत बड़े लार्ज प्रिंटेड पिक्चर्स होती हैं जो कि पब्लिक प्लेसेस पे होती हैं, टू पुट समथिंग इनटू द नोटिस ऑफ पीपल और टू एडवर्टाइज सम प्रोडक्ट और टू अवेयर पब्लिक regarding something or to aware them about any event. Okay, so there are many kind of posters. So first of all, let us discuss the key features of posters. Okay, first of all, a poster always consists a title. हमेशा एक टाइटल होता है, and the title is almost sufficient enough to tell about the whole topic. Like tobacco kills, तो आपको tobacco पढ़ते ही, आपको kills पढ़ते ही आपको सब समझ में आता है that it's going to harm you. Okay, it can lead to death, like these things. Okay, so title is very important, and title should not exceed 2 lines. It should be every time very crispy, precise. बहुत ही छोटा होना चाहिए, 2 words का, 3 words का. लेकिन अगर आपका कोई टॉपिक जो है जो काफ़ी डिफ़िकल्ट है, अगर आप उसका छोटा टाइटल नहीं बना रहे हैं, बट तो उसमें आपकी जो है 2 लाइन्स एक्सीड नहीं होनी चाहिए. दूसरा होता है टेक्स्ट, यानी कि जो आपकी रिटन, जो आप लिखते हो टेक्स्ट, अगर हम कहें फ़ॉन्ट भी बात कर सकते हैं. यू कैन यूज़ डिफरेंट टाइप ऑफ फ़ॉन्ट्स इन अ सेम पोस्टर. आप एक ही पोस्टर में कई फ़ॉन्ट्स यूज़ कर सकते हो. आप टाइटल को अलग राइटिंग में लिख सकते हो, जो उसके नीचे जो कुछ कैप्शंस दिया है उसको अलग राइटिंग में लिख सकते हो. देन वाइट स्पेस,
पोस्टर्स में ये बहुत मैटर करता है कि आपके पोस्टर के अंदर वाइट स्पेस कितना है, यानी कि ब्लैंक स्पेस, यानी कि आपके हर कैप्शन के, यानी कि हर हेडिंग, हर इंफॉर्मेशन के साइडों में, बीच में आपका कुछ एक ब्लैंक स्पेस होना चाहिए, यानी कि ईच पोर्शन, एवरी पोर्शन ऑफ इंफॉर्मेशन मस्ट बी सेपरेटेड फ्रॉम द अदर। ओके, देन फ्लो फ्लो से पहले आता है लेआउट, यानी कि हमारा जो प्रॉपर एक फॉर्मेट जो है, वी नीड टू फॉलो दैट। देन फ्लो आता है। फ्लो हमारा ऐसा होना चाहिए कि जो पूरा हमारा पोस्टर है इट इज़ वेरी स्मॉल, ठीक है, तो वो आई कैची होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने टाइटल देखा विच इज़ अबाउट टोबैको किल्स, ओके, और नीचे आते आते हम कुछ डिफरेंट इररिलेवेंट से हमने कोई हेडिंग डाल दी या कुछ टॉपिक डाल दिया। फ्लो में होना चाहिए, कैची होना चाहिए, पोस्टर के हर कॉर्नर से सेम मैसेज आना चाहिए। ओके, यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर व्हेन आई विल शो यू सर्टेन पोस्टर्स। ओके, so these are some general things regarding a poster. Okay, so let's come to a poster which you need to frame according to your class format. Okay, जैसे मैं यहाँ पे मैंने एक पिक्चर ड्रॉ की थी, तो जैसे कि एक बहुत ही सिंपल सा पोस्टर है ये, SBA सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ठीक है, टैलेंट शो, ओपन टू ऑल, शो व्हाट यू गॉट, एंड इट्स अ टैलेंट शो, यानी कि म्यूज़िक, आपके पास जो भी टैलेंट है यू कैन शो दैट, टाइम, डेट, वेन्यू, एंड द इशूइंग अथॉरिटी इज़ मैंशनड अबव हियर। सो देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि आपको कुछ चीज़ नीचे ही लिखनी है या टाइटल आपका सेंटर में ही होना चाहिए, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सभी को पता है टाइटल ऊपर होगा, सेंटर से वो कॉर्नर में आ सकता है, इशूइंग अथॉरिटी का नेम जो है वो नीचे से ऊपर आ सकता है, अकॉर्डिंग टू योर माइंड, आपने क्या सोचा है, ठीक है। अब हम आपकी क्लास 12 के पोस्टर के फॉर्मेट के बारे में अगर बात करें तो देखो, सबसे पहले क्या होना चाहिए, हमारा टाइटल होना चाहिए, ठीक है। यू कैन यूज़ फिगर्स, यानी कि यू कैन पेस्ट पिक्चर्स और यू कैन ड्रॉ पिक्चर्स लाइक आई ट्राई टू ड्रॉ हियर। ओके, स्पेसिंग एंड हेडलाइंस, आपकी डिफरेंट हेडलाइंस के बीच में आपके स्पेस अच्छे होने चाहिए और आपकी हेडलाइंस जो है वो रेलेवेंट होनी चाहिए, ठीक है। डेट, टाइम एंड वेन्यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपके डेट, टाइम, वेन्यू बहुत ही क्लियर होने चाहिए। देन आपका थीम जो है उस पोस्टर से वो एकदम क्लियर होना चाहिए। देन नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, ये भी आपका ज़रूर होना चाहिए पोस्टर में। सो वेरी सिंपल, इट्स वेरी वेरी सिंपल, और सिर्फ 4 मार्क्स का होता है। लेकिन वाई these posters has involved in your topic, or sorry, in your syllabus, because our examiner also wanted to know about your creativity. Okay, I will tell you in which kind of writing it consists, कि कौन सी राइटिंग के अंदर ये पोस्टर्स आते हैं और ऐसे ही पोस्टर्स हमारे सिलेबस में क्यों हैं, क्या जज करना चाहते हैं। बिकॉज रीडिंग अ चैप्टर एंड लर्निंग क्वेश्चन आंसर इज़ वेरी ईजी, ठीक है। नाउ try to write something or draw something creative is a different zone. Okay, so these things are to examine your creative part. Okay, so I hope you understand this video. I will share some questions along with the answers so that you will have a better clarity of this. Okay, write down this definition, these key features. You can pause the video, है ना, and these things. आई प्रिसाइज एवरीथिंग फॉर यू, मैंने बहुत ही सब कुछ कट शॉर्ट और बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपको बताया है।